इफ आई आस्क यू व्हाई यू चूज केमिस्ट्री एज योर कल्चर, तो आपने केमिस्ट्री क्यों चूज किया, बताओ मुझे। So आप इंग्लिश भी तो ले सकती थी, आपने केमिस्ट्री क्यों लिया? actually, I love this subject chemistry because it belongs to daily life, ओके, and डेली लाइफ तो मॉरल साइंस भी है, yes sir, but chemistry. इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, हिंदी डेली लाइफ में यूज करते हैं, फिर But- केमिस्ट्री क्यों चूज किया? Sir, ये एक- मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आपको किस जगह पर जाना है? APS. APS, आर्मी पब्लिक स्कूल। Yes. तो सोचो जब आप APS के लिए जा रहे हो तो आपसे वो एकदम से ऐसे ही तो क्वेश्चन पुट अप करेगा, वो बने बनाए जो 5 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, वो जरूरी नहीं है वो पूछता है, वो मर्जी से चलता है, उसका मन करेगा वो करेगा। आप येलो सूट पहन कर आए, वो बोलेगा हाँ जी येलो रंग आपको पसंद है क्या, अब आप क्या कर लोगे? आप ये तो कह नहीं सकते मनोज सर ने क्वेश्चन मुझे कराया नहीं, Yes. येलो सूट तो मैंने पहना नहीं था सर ने मुझे कराया नहीं, राइट? तो आप नहीं बोल सकते, राइट? चलिए टीचर्स की क्वालिटी बताइए। Sir, teacher should be versatile personality, ओके, and she should be thoroughly knowledge of her subject, and command on her practical also. Okay. And she should be a basic knowledge of psychology of the students, ओके, and that's all sir. ओके, वंडरफुल। चलो अपनी तरफ से आपने अच्छा बताया। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर आपको बोले आपका इंट्रोडक्शन दो तो आप कैसे दोगे? Yes sir. Good morning sir, good morning ma'am. I'm Deepika. I belong to Sri Ganganagar. I'm Masters in MSc and B.Ed with 66% from Maharaja Ganga Singh University. I want to be a successful pedagogue. Okay. My strengths are that I'm a self-confident, creative and honest personality. Suppose we have to teach something in chemistry. Yes sir. So how will you teach? मान लो periodic tables आपको समझाना है बच्चों को, तो Yes. कैसे स्टार्टअप कैसे करोगे? Sir, first of all, I tell to the students that what is the outline of a periodic table. Okay. Basic structure, what is the basic structure of periodic table. After that, I will start how I divide this periodic table and how much elements are in the periodic table. So we have recently 118 elements in periodic table. After that, I will describe whole periodic table with a single words also. Okay. You are trying your best. आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छी आंसरिंग दी है। मैं आपकी ज़्यादा वीकनेसेस नहीं सर्च आउट करूंगा, मगर अच्छा है, कुल मिलाकर अच्छा। और अभी स्टार्टअप है तो जितना तुमने बताया वो अच्छा बताया। आपका केमिस्ट्री में फेवरेट टॉपिक क्या है? So my favorite topic is IUPAC nomenclature of organic compounds. Okay. What does it mean? अगर सिर्फ इसका मीनिंग बताना हो तो क्या होता है? Sir, actually this is the नाम भी very इतना बड़ा है कि डर लगता है इसको तो सुन के ना, वैसे IUPAC आगे तो मुझे समझ में नहीं आया क्या चीज़ थी। Sir, this is the name of International Pure and Applied Chemistry. This is a special name. Suppose we have a common name like my name is Deepika, but my special name is I can say in chemistry that NaCl, that is sodium chloride, like this. So IUPAC name means alkane. We are using ethyl alcohol, that is formula is C2H5OH. So I can say that this is IUPAC name of ethyl alcohol, means you can see that it is a drink. All people are, but very harmful for people. So ethyl alcohol is known by ethanol. That is the IUPAC name of ethyl alcohol. Okay. So this is a particular Yes, sir. which you like the most. Yes, Why you sir. like this much hard topic? कोई easy topic याद कर लेते। So no sir, actually it's too much simple. Really? Because yes sir. Okay. Why you want to go in APS? क्यों join करना चाहते हैं? Sir, APS is a full of Challenges. full of adventures, challenges and very enthusiasm and very ethics and very devotion, like and he is a public school. It is a public. It is a public school. And, Sorry. tell something about APS. You are having any knowledge regarding APS? Yes sir. Please I have. continue. Yes sir. It's a public school. Okay. And it is established for the imparting of education of children Right. of Indian Armed Forces. Okay. 137 school and 249 pre-primary school of APS. Right. And Army Public Schools Societies, Army, it is controlled by the Army Welfare Education Society. Okay. And it is established in 1983. Okay. That's all sir. So although you are having a depth knowledge, okay, Yes. but if they ask you, madam, why you opted APS, then we should have a good answer. जिसका भी आंसर आपके पास अच्छा नहीं है, मैं satisfied नहीं हूँ, right? NVS क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? एनवीएस डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। डिसिप्लिन है, मान लिया, कुछ और सर ये पूरा डेडिकेटेड होता है स्टूडेंट्स के करियर के लिए। ओके। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि सर इसमें रूरल
टेरिटोरियल से जो बच्चे आते हैं उनका मोस्टली उन बच्चों को इसमें प्रेफरेंस दी जाती है सर। ओके, अब मान लो अगर वो आपसे कोई सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ ले कि आपकी क्लास में बच्चे बहुत बातें कर रहे हैं, बहुत शोर मचा रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो आप क्या करोगे? सर उनको पहले तो समझाएंगे, फिर या अगर ऐसा है कि ज़्यादा शोर करे तो फिर पिटाई करेंगे, ऐसा कुछ? नो सर। तो सर इसके बारे में तो मैं तो थोड़ी डिफरेंट थिंकिंग है इस बारे में मेरी। ओके, पिटाई करना सर सॉल्यूशन नहीं होता है किसी चीज़ का। उसके लिए बच्चों को अलाउड नहीं है आजकल हमारे देश में, अलाउड भी नहीं है और एथिकली भी सही नहीं है सर। वो पिटाई करने से हर बच्चा जरूरी नहीं कि सुधर जाए। पिटाई करते थे बच्चे जल्दी याद करते थे, होशियार ज़्यादा होते थे। सर वो आजकल पेरेंट्स एकदम से आ जाते हैं ना, मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया आपने, हाउ डेयर यू टच माय किड, राइट? नहीं सर, समय के साथ टीचर तो डर डर के पढ़ाते हैं आजकल ना, कि कब क्या बच्चा पिटाई करके चला जाए, कुछ ही बोल जाए। ऐसा नहीं सर, बच्चे को जितना फ्रेंकली अपन पढ़ाएंगे ना, बच्चा उतना ही जल्दी उसको कवर अप करेगा सर। ये अपन क्या होता है बीच में? अपन, बंदा, अपन, ये यूज करते हो आप लोग है ना? बंदा, अपन, ये मत यूज करो। बंदा मतलब पर्सन है, अपन मतलब अपने हैं, ठीक है? ध्यान रखा करो। और जब बोलो तब पूरे एंथुसियाज्म के साथ बोलो, राइट? दीपिका के लिए क्लैप्स करो, अच्छा बोली, और आपने एनवीएस के लिए अच्छा नॉलेज गेन किया, ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे, राइट? सो ट्राई अप करो, अभी वीकनेसेस है। जब आप बोलते हो, 2-4 बातें बताता हूँ अगर आप सुनना चाहते हो तो। जब आप बोलते हो थोड़ा सा एंथुसियाज्म के साथ बोलिए, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हो, जस्ट रफ आइडिया। तो तुमने बोला था नोबल प्रोफेशन है, और तुमने बोला था मतलब मैं पढ़ाना चाहूंगा उन बच्चों को जो ईगर है नॉलेज के, राइट? तो उसमें थोड़ा सा एंथुसियाज्म डाल दो। जैसे जैसे आप मुझसे बोलो कि सर आप टीचर क्यों बनना चाहते हो? सर आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो एक नोबल प्रोफेशन है एंड आई लव दिस प्रोफेशन, ऐसे आने दो, मतलब थोड़े से हाव भाव आने दो। क्या होता है, अब इसी बात को अगर मैं थोड़ा ढीला बन के बोलूँ ना, सर दिस इज द नोबल प्रोफेशन एंड आई लव दिस प्रोफेशन, तो ऐसा लग रहा है यार करता नहीं है लव, सिर्फ है ना ऐसे दिखा रहा है, राइट? तो उसमें थोड़ा सा जोश जुनून डाल दो।